Good afternoon, friends. Okay, so I hope so my voice is audible. Is it audible? Hello, am I Yes, sir. audible? Okay, Yes, sir. okay. I hope so. Yesterday, the link which is given by me for the video lecture, you have go through that lectures. देख लिया सब लोगों ने दोनों lecture. Okay, कोई issue आ रहा है उसमें? Any query so far as the two lectures are Hello, concerned? sir. हाँ बोलिए. Sir, can you please increase your volume? It is having a already high. Now it's okay. Hello. See, there may be some network issue. Maybe because of that, the volume may be increase and decrease. Okay. Hello. Yes, Hello. sir. Okay. No issue. So I'm asking that you have go through that two video lecture which is uploaded by me on the YouTube just because of sessions, and I'm not able to upload that video on the Microsoft Teams platform. So by a common channel, I have uploaded that video on the YouTube. So I hope so that videos are already watched by you, and any question so far as that videos are concerned, you can ask first that question, then we can go further ahead. The first video is a laser creation which I have taught in the classroom itself, even though I have uploaded that video. And second video is again the laser creation. First video is laser creation with the traditional way. That is, first of all, we can identify some of the laser and we can create all the lasers simultaneously one by one. Okay. And second video which I have uploaded, that is a laser creation simultaneously at the time of identifying the entry and passing the necessary journal entries in the Tally RP9. So दोनों में फर्क है. There are two different way and which you have to learn. So दोनों ही तरीका accepted है. आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं. But the thing is that in the practical world, the thing which is I can say accepted is the second one. That is you have already identified the journal entries, and at the time of passing the journal entries, you are trying to create the ledger itself. So that is the main thing. Any question or shall I go for the next activity? Sir, next activity. Okay. Give me a second. I'm just opening my profile. That is Tally Prime. You can go for that thing. No issue. Okay. मोस्ट प्रॉब्ली आज का जो एक्स्ट्रा लेक्चर रखा है उसमें आई थिंक जो आपका सेकेंड यूनिट खत्म हो जाएगा. ठीक है. उसमें बाकी कोई कंटेंट सेकेंड यूनिट में नहीं बचेंगे. सर हाँ बोलिए. सर आप आज रिकॉर्ड कर रहे हैं लेक्चर? जी बिल्कुल रिकॉर्ड कर रहा हूँ. ओके सर. ऑलरेडी जो सेकंड वीडियो था वो ये एक्टिविटी नंबर 3 के ऊपर था. तो एक्टिविटी 3 जो पूरा मैंने कोशिश की है विद इन 1 hour that I have sort out the entire activity for you. Okay, this is the third activity which is already there in the video 2 lecture. Today I am supposed to start activity number 4. That is the next activity. So let's see what is pending in unit number 2 that we have completed within this 1.5 hour. So activity number 4, you can see it is written open a new company in the Tally Prime with the following information. So एक नई कंपनी ओपन करने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन दी है. So we will do that the same thing. Okay, अभी आपके सामने मैं एक कंपनी क्रिएट करूँगा Tally Prime में अगेन. और नीचे कुछ लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं. Mrs. VS Electronics and Associate engage in the trading of the electrical items since 2010 in Vadodara. Having the wholesale electrical business, you are supposed to create a stock item, stock group, stock category for the following information. तो आपको एक सिंपल सा इंफॉर्मेशन दिया है. हमने अभी तक जो भी एक्टिविटी की थी वहाँ कहीं पे भी इन्वेंट्री नहीं आती थी. ओके. But now we are supposed to do a activity with the inventory, and specifically that is, first of all, the intention is to create certain stock item. We are going to create certain stock category. We are going to create certain stock groups. So how you can understood this thing, that is also very important. I think so this activity not take more than 20 minutes.
I can complete this activity 4 within 20 minutes, not more than that. And we have to understand the crux of that thing. After the completion of this activity, I have one more activity, which is a one lengthy one. That is again journal entries with the inventory. So activity number 5. So उसमें बहुत सारे ट्रांजेक्शन है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि पहला एक्टिविटी 4 जल्द से जल्द खत्म हो जाए ताकि हम एक्टिविटी नंबर 5 पे चले जाए। और जैसे एक्टिविटी 5 खत्म हो जाएगा आज के लेक्चर में, आपका यूनिट नंबर 2 का सिलेबस खत्म हो जाएगा, कोई पेंडिंग नहीं रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद आई विल ओपन माय प्राइम। मुझे एक नई कंपनी ओपन करने के लिए बुला है, तो चलिए कर ही लेता हूँ। सो आई गो इन द कंपनी क्रिएट स्क्रीन। सो दे आर आस्किंग फॉर द वीएस इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएट्स। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से कॉपी पेस्ट करता हूँ ताकि मेरा काम थोड़ा जल्दी हो जाए। Okay, the system is not moving. Something is actually wrong. Okay, just hold a second. मैं इस कंपनी को डिलीट कर देता हूँ। कुछ प्रॉब्लम हो गया वहाँ पे। ओके नहीं, चलिए नई कंपनी क्रिएट करते हैं फटाफट। क्या नाम था कंपनी का? मेसर्स वीएस इलेक्ट्रॉनिक एंड एसोसिएट। एड्रेस में अभी सिंप्लिसिटी के लिए पूरा एड्रेस नहीं टाइप कर रहा हूँ, शॉर्ट में एड्रेस इंसर्ट करके भाग रहा हूँ। So this is the address which is given there. I have tried to use the entire address. पिन कोड नंबर बाकी सब दिया है, आप जब यूज करेंगे तो आप डाल सकते हैं। मैं इसको कुछ यूज नहीं कर रहा। आई एम गोइंग एज इट इज। ओके, आई विल से डेटा बुक्स विदिन फ्रॉम फर्स्ट एड्रेस। ओके ओके, गो फॉर द क्रिएशन। सो यहाँ पे जब F12 का कॉन्फ़िगरेशन ओपन होता है यहाँ पे, ये जो कॉन्फ़िगरेशन ओपन है अभी आपके सामने, यहाँ पे मुझे मेंटेन अकाउंट्स को यस करना है, इनेबल बिलो एंट्री को यस करना है। मेन चीज ये है इन्वेंट्री वाला पोर्शन कि जहाँ पे आपको यस करना पड़ेगा, नहीं तो हमें जो चाहिए वो हम नहीं कर पाएंगे। सो एज इट इज जीएसटी भी इनेबल है। मैं इसको कंट्रोल ए करके डायरेक्टली सेव कर रहा हूँ और मेरी कंपनी स्क्रीन पे आ गई। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी एक ही कंपनी स्क्रीन पे दिखे, मुझे सेकंड कंपनी को बंद कर देना है। तो मैं अगेन कंपनी में जाऊँगा, वहाँ पे कंट्रोल प्लस F3 का शॉर्टकट की है, शर्ट कंपनी दिया है। शर्ट कंपनी में जाके मैं जिस कंपनी को बंद करना चाहता हूँ उसको सिलेक्ट करूँगा। यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन नाउ देयर इज ओनली वन कंपनी विच आई वांटेड टू बी देयर। सो वीएस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एसोसिएट्स ही आपकी स्क्रीन पे दिखेगा और कोई कंपनी अभी एक्टिवेटेड नहीं है। ओके, सो वो जो एक्टिविटी आपको दिया है वहाँ पे बोला गया है कि स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी एंड स्टॉक आइटम। ओके, सो ये अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना। स्टॉक इट इज सर ऑलवेज इम्पोर्टेंट। हाँ बोलिए। सर वन डाउट इज दैट हाँ सर ये जो हमने शर्ट किया हाँ यानी सर इट मींस के फॉर अ टेम्पररी बेसिस और वी हैव डिलीटेड इट। No, no, we have not deleted. Shut means we have closed it down. Shut means we have closed down the company. See, in the company, if I click on the company, if you go for F3, that is, say for example, this shortcut key is F3. So directly on the gateway of Tele, if I press F3, it will give me a selection of the company. Okay, I can change my company. So in that, I will go for the select company, one more company. तो मैं 3 से 4 कंपनी भी ओपन करके रख सकता हूँ, जैसे कि ABC ट्रेडिंग है, ओपन हो गया। अगेन मैं F3 प्रेस कर रहा हूँ, एक और सिलेक्ट कंपनी कर रहा हूँ, नई कंपनी ओपन करना है। सो यू कैन सी मैं जीबी ट्रेडिंग कंपनी ओपन कर देता हूँ। तो अब देखिए मेरी स्क्रीन पर अभी 3 कंपनी आ गई। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि जस्ट फॉर द सिंप्लिसिटी एंड फॉर द अवॉइड द कॉम्प्लेक्सिटी, try to open only that one company in which you want to do the work.
नहीं तो होता क्या है, से फॉर एग्जांपल आपने नया नया टैली सीखा है, आपने 2-3 कंपनी स्क्रीन पे ओपन थी, आपको पता था कि मुझे तो ये काम करना आता है, आई नो हाउ टू डू द एंट्री वर्क, आई नो एवरीथिंग, आई हैव अ गुड कमांड ऑन द टैली प्राइम। लेकिन जल्दबाजी में जिस कंपनी में एंट्री करनी थी उस कंपनी में एंट्री नहीं किया, तो 3-4 कंपनी एक्टिवेट थी, उसमें से किसी और कंपनी में आपने एंट्री कर दिया। ये बहुत बार होता है, जैसे कि एक बहुत बड़ी कंपनी होती है, उसकी सब्सिडरी कंपनी होती है, होल्डिंग कंपनी होती है, ओके, या तो उसकी पेरेंट कंपनी होती है। तो ऐसे जब पूरा ग्रुप्स ऑफ कंपनीज आपके पास होता है और आप ही उसका अकाउंट देख रहे हैं, तो फॉर द सेफर साइड इट इज वेरी, आई कैन से, it is recommended that you should open only one company on one screen। तो मुझे अभी VS ही चाहिए, तो मैं VS को सिलेक्ट कर रहा हूँ और बाकी की 2 कंपनी को मुझे बंद कर देना है। सो आई कैन गो इन द कंपनी, शट का कमांड क्या है, कंट्रोल प्लस F3। सो आई कैन से कंट्रोल प्लस F3, जैसे ही मैं वो पूछूंगा तो वो पूछा है कि कौन सी कंपनी बंद करनी है, तो मैं पहले 1 बाय 1 करने देता है, 2 कंपनी एक साथ वो करने नहीं देगा, तो मैं पहले ABC ट्रेडिंग मैंने बंद कर दिया। वापस मैं कंट्रोल प्लस F3 प्रेस कर रहा हूँ अपने कीबोर्ड से, अब मैं उसको बोल रहा हूँ कि जीबी ट्रेडिंग को बंद करो। तो ये मैंने टेम्पररी उसको क्लोज डाउन किया है, उसका डेटा एज इट इज रहता है। देयर इज नो इम्पैक्ट ऑन द डेटा ऑफ दैट कंपनी, कि जो भी हमने उस कंपनी में काम किया उसको कोई डिलीशन नहीं होता है। डिलीशन किसको कहते हैं, जब आप पूरा का पूरा कंपनी डिलीट कर दो, और अगर डिलीट कर दिया तो प्लीज बी केयरफुल, इट कैन नॉट बी रिकवर, कभी रिकवर नहीं हो सकता। अगर आपने टैली में कोई भी कंपनी को डिलीट कर दिया आपने, तो उसके बाद वो कंपनी का डेटा आप रिकवर कभी नहीं कर पाएंगे। इज इट ओके, इज इट क्लियर? यस सर। शर्ट कंपनी यानी हम टेम्पररी क्लोज कर रहे हैं और कुछ नहीं, वो डेटा वहीं पे है। ओके, चलिए, तो जो एक्टिविटी था उसमें हमें आज समझना था स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? सी, कोई भी कंपनी में आप जाएंगे तो या तो वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है या तो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या तो फिर ट्रेडिंग वाले भी होते हैं, ट्रेडिंग कंपनी भी होते हैं, सेल परचेज ओनली होता है, या फिर मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है। लेकिन जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होगा, जहाँ पे ट्रेडिंग होगा, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे स्टॉक होना ही होना है, यानी कि स्टॉक का कॉन्फ़िगरेशन, स्टॉक का काउंटिंग, ये सारी चीज़ें वहाँ पे एप्लीकेबल होती है। ऐसे बहुत कम आई कैन से प्रोडक्ट, या सॉरी नॉट, ऐसे बहुत कम फील्ड होगी जहाँ पे आपको इन्वेंटरी देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइडर कंपनी में है जो सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करती हैं, तो वहाँ पे आपको पॉसिबल है कि वहाँ पे आपको इन्वेंटरी देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अदरवाइज बाकी हर जगह पे तो आपको इन्वेंटरी देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो 3 नाम बहुत इसमें उभर के आते हैं जो इम्पोर्टेंस गेन करते हैं कि स्टॉक आइटम क्या है, उसका कैटेगरी मुझे कैसे रखना है, उसका स्टॉक ग्रुप मुझे कैसे डिफाइन करना है। अगेन इट इज टोटली डिपेंड अपॉन द अकाउंटेंट्स ब्रेन, अकाउंटेंट उसको किस तरह से देखता है, उसको किस तरह से समझता है, इट डिपेंड्स ऑन ऑल दैट थिंग। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने सबसे पहले स्टॉक ग्रुप लिखा है, मैंने उसको हायरकी में लिखा है। तो सबसे बड़ा आइटम होता है स्टॉक ग्रुप, स्टॉक ग्रुप के नीचे आएगा स्टॉक कैटेगरी, और स्टॉक कैटेगरी के नीचे आएगा स्टॉक आइटम। सो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में मैंने लिखा है। अगर असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता तो पहले स्टॉक आइटम आता, फिर स्टॉक कैटेगरी एंड फिर स्टॉक ग्रुप। तो मैंने आपकी कन्वेंसी के लिए उसको इस तरह से लिखा है कि पहले स्टॉक ग्रुप देखिए, फिर स्टॉक कैटेगरी या स्टॉक आइटम। अगर आपको ऐसे नहीं समझना तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि पहले मैं स्टॉक आइटम देखूंगा, फिर उसका कैटेगरी डिटरमाइन करूंगा, और लास्ट में उसका स्टॉक ग्रुप डिटरमाइन करूंगा। तो ऐसे भी समझ सकते हैं। लास्ट में एक यूनिट का कॉलम दिया है, यूनिट में बाय डिफॉल्ट मैंने सारे कॉलम्स में नम्स लिखा है। सो वो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, जब आप नम्स लिख रहे हैं वो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। सो यूनिट ऑफ मेजरमेंट यानी क्या, दैट इज इन विच फैक्टर, इन कन्वर्जन फैक्टर यू आर गोइंग टू मेजर दैट प्रोडक्ट। तो आप उस प्रोडक्ट को कैसे मेजर करने वाले हैं, वेदर यू आर गोइंग टू मेजर द प्रोडक्ट एज पर नंबर्स। ओके, यहाँ पे अगर कोई लिक्विड फॉर्म होता है, फॉर एग्जांपल केमिकल होता, ओके, केमिकल्स बहुत अलग अलग तरीके से होते हैं, तो यहाँ पे यूनिट ऑफ मेजरमेंट मे बी लीटर्स में होता, राइट। अगर सॉलिड वेस्ट, सॉलिड प्रोडक्ट होता तो मे बी इन केजी में केमिकल भी हो सकता है। सो दैट इज यूनिट ऑफ मेजरमेंट। यहाँ पे जस्ट फॉर द सिंप्लिसिटी नंबर्स का हमने यूनिट ऑफ मेजरमेंट लिया है। और प्राइम में देखिए, जब आप गेटवे ऑफ टैली पे आते हैं तो यू कैन सी मास्टर है, ट्रांजैक्शन है, यूटिलिटी है, रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स में कहीं ना कहीं आपको स्टॉक समरी दिखती है, हाँ। तो ये स्टॉक समरी, अभी तो हमने कुछ क्रिएट किया ही नहीं तो कुछ भी नहीं दिखेगा। तो सबसे पहला टास्क है कि हमें क्रिएट करना है क्या, स्टॉक आइटम, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक ग्रुप। तो सबसे पहले मैं क्रिएशन की स्क्रीन पे जाऊंगा। जैसे ही आप क्रिएशन की स्क्रीन पे जाते हैं
यू कैन सी वहाँ पे आपको अकाउंटिंग मास्टर में हमने पहले ही लेजर देख लिया, लेजर का क्रिएशन देख लिया, ऑल्टरेशन देख लिया, डिलीशन देख लिया। आज हमें देखना है इन्वेंट्री मास्टर में स्टॉक आइटम कैसे क्रिएट होगा, स्टॉक कैटेगरी कैसे डिटरमाइन करेंगे और स्टॉक ग्रुप कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो सबसे पहले मैंने पहले बोला, मैंने उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में ही रखा है, पहले स्टॉक ग्रुप फिर कैटेगरी एंड फिर आइटम। तो वैसे ही यहाँ पे भी मैंने उसको वैसे ही ड्राफ्ट किया है जस्ट फॉर सिंपलिसिटी। तो चलिए पहला एक यूनिट यानी कि पहली जो लाइन में दिया है उसको हम क्रिएट करते हैं। तो पहला स्टॉक ग्रुप मैंने लिया है टेलीविजन सेट। कैसे डिटरमाइन करना है मैं आपको उसके हिंट दे दूंगा, पहले देख लीजिए करना क्या है। तो स्टॉक ग्रुप में जाके मैं क्रिएट करता हूँ टेलीविजन सेट, जिसको हम टीवी बुलाते हैं, तो वो क्रिएट कर लिए। शुड आइटम्स ऑफ क्वांटिटी बी एडेड, आप यहाँ से यस भी कर सकते हैं, नो भी कर सकते हैं। अभी के लिए आप इसको यस करेंगे तो कर दीजिए, ठीक है। सेट ऑर्डर जीएसटी उसको अभी नो ही रखे, उसको यस करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने एक ग्रुप टेलीविजन सेट क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पे कितने ग्रुप हैं, तो पहले दो लाइन में एक ग्रुप मिल गया टेलीविजन सेट, दूसरी तीन लाइन में एक और ग्रुप था म्यूजिक सिस्टम, और तीसरी लाइन में एक अलग से ग्रुप है साउंड बार। तो मैं पहले दोनों यानी कि तीनों स्टॉक ग्रुप को क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने तीनों ग्रुप्स को क्रिएट कर लिया। अब सिर्फ पहला एग्जांपल देखेंगे। वापस मैं यहाँ से बैक स्पेस एस्केप के जरिए लेता हूँ, मैं बाहर निकल आ गया, सॉरी। क्रिएशन की स्क्रीन पे स्टॉक ग्रुप, तो यहाँ पे क्रिएशन में मैंने स्टॉक ग्रुप क्रिएट कर लिया। अब बारी आती है स्टॉक कैटेगरी की। अब उससे पहले जैसे कि यहाँ पे दिया है फर्स्ट लाइन में दिया है 25 इंच। आपको पता ही होगा टेलीविजन सेट्स का आपको अगर बाइफरकेशन करना है, उसको कैटेगरी डिफाइन करनी है, तो कैटेगरी कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो एक कैटेगरी डिफाइन हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांड। ओके, अगर मैं चाहूँ, मैंने पहले बोला कि एज अकाउंटेंट आपके ऊपर है, आप उसको कैसे डिफाइन करना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए उसको कैटेगरी में डिफाइन किया है इन टर्म्स ऑफ साइज, उसका साइज क्या है, ठीक है, उसकी ब्रांड क्या है, उसके बाद उसका कोई स्पेसिफिकेशन है, जैसे कि स्मार्ट नॉन स्मार्ट टीवी का बाइफरकेशन है, तो वो भी एक कैटेगरी का क्राइटेरिया बन जाता है। जनरली टीवी में एक्चुअली सब स्टॉक की कैटेगरी जनरली इंचेस पे होती है। तो कितने इंच का आपको टेलीविजन सेट लेना है, दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज आस्क्ड बाय अ सेल्समैन टू यू कि सर आप कितने इंच का टीवी लेना चाहते हैं, सो दैट इज द कैटेगरी। तो यहाँ पे देखिए स्टॉक कैटेगरी में 25 इंच और सेकंड लाइन में 29 इंच दिख रहा है। तो मैं सबसे पहले स्टॉक कैटेगरी क्रिएट कर रहा हूँ। So I will go in the stock category. So 25 इंच प्राइमरी में ही रखना है उसको। 29 इंच इसको भी सेव कर लेते हैं। चलिए ये दो हो गया। वापस मैं बैक स्पेस यानी कि एस्केप दे रहा हूँ, एस्केप से वापस आ गया। अब मेरे एग्जांपल में वापस आता हूँ, तो पहले दो लाइन में स्टॉक आइटम मुझे दिया है। पहली लाइन में स्टॉक आइटम दिया है सोनी का टीवी है, ओके, और दूसरी लाइन में जो दिया है वो बताता है फिलिप्स टीवी। चलिए तो वापस मैं टेली प्राइम पे आ जाता हूँ। अब मैं स्टॉक आइटम में जाऊँ, तो यहाँ पे लिखते हैं सोनी टीवी। सोनी टीवी में मैं क्रिएट कर रहा हूँ उसका स्टॉक आइटम। यहाँ पे वो डिस्क्रिप्शन पूछ रहा है, अगर आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन, अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्शन डालना है तो यहाँ पे डाल सकते हैं। अब देखिए वो पूछ रहा है यहाँ पे ग्रुपिंग, तो जैसे हम लेजर क्रिएट करते थे वहां पे वो ग्रुपिंग पूछ रहा था, सेम वे अब वो यहाँ पे भी स्टॉक आइटम में क्रिएट कर रहा हूँ कि सोनी टीवी का स्टॉक आइटम है मेरे पास। तो वो सबसे पहले आपको पूछ रहा है अंडर, अंडर यानी आपको ग्रुप पूछ रहा है। ग्रुप कैसे पता चला ग्रुप पूछ रहा है, यू कैन सी यहाँ पे लिखा हुआ आता है लिस्ट ऑफ ग्रुप्स। सो लिस्ट ऑफ ग्रुप में हमने प्राइमरी के अलावा और तीन ग्रुप हमने क्रिएट किए हैं, टेलीविजन सेट, साउंड बार एंड म्यूजिक सिस्टम। तो आपको याद होगा सोनी टीवी को हमने
ग्रुपिंग दिया था टेलीविजन सेट, तो मैं यहाँ पे टेलीविजन सेट ले रहा हूँ। अब देखिए जैसे टेलीविजन सेट सिलेक्ट किया, सेकंड लाइन में वो पूछ रहा है यूनिट्स, यूनिट्स यानी यूनिट ऑफ मेजरमेंट, लेकिन सर कहीं पे भी स्टॉक कैटेगरी तो पूछ नहीं रहा है। तो उसके लिए आपको कॉन्फ़िगरेशन में जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक फंक्शन बंद है, उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो मैं जाऊंगा कंपनी में, उसके बाद मैं जाऊंगा F11 फीचर्स में, सॉरी F11 फीचर्स में नहीं, मुझे F12 में जाना है मन से। सो यहाँ पे इस स्क्रीन पे आने के बाद आपको F12 में जाना है कॉन्फ़िगरेशन में। राइट, कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद आपको यहाँ पे देखिए शो मोर कॉन्फ़िगरेशन पूछ रहा है, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट नो है, तो इसको यस कीजिए। जैसे ही यस करेंगे देखिए कॉन्फ़िगरेशन का जो मेन्यू था वो बढ़ गया, और यू कैन सी हियर यूज स्टॉक कैटेगरी फॉर स्टॉक आइटम, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे नो दिया है, वी हैव टू मेक इट यस। अब इसको सेव करने के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस ए फॉर अहमदाबाद, तो मैंने सेव कर दिया। जैसे जैसे ही सेव किया देखिए मेरा स्टॉक आइटम सोनी टीवी था एज इट इज, डिस्क्रिप्शन के बाद अंडर ग्रुपिंग मैंने टेलीविजन सेट दिया। अब देखिए यहाँ पे कैटेगरी बी आ रहा है, यानी कि पहला वो मुझे पूछ रहा था स्टॉक ग्रुप, अभी सेकंड लाइन में वो पूछ रहा है स्टॉक कैटेगरी। तो आपको याद होगा मैंने उसको 25 इंच और 29 इंच में उसको डिवाइड किया है, तो मैं इसको दे देता हूँ, आई थिंक सो मुझे एग्जांपल देख लेना चाहिए कि एग्जांपल में कितने इंच का दिया है। तो आप देख सकते हैं पहला टेलीविजन जो सेट है सोनी का वो 25 इंच का है, तो मैं 25 इंच यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। तो उसके बाद वो मुझे पूछ रहा है यूनिट ऑफ मेजरमेंट, तो अगेन यहाँ पे मुझे क्रिएट करना पड़ेगा, कोई दिया ही नहीं है क्योंकि नई कंपनी ओपन की है मैंने। तो मैं क्रिएशन स्क्रीन पे जाता हूँ, ऊपर क्रिएट दिखाई है वो सिलेक्ट कीजिए। अब यहाँ पे वो सिंबल पूछ रहा है, यानी कि सिंबल यानी कि आप उसको कैसे उसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो हम उसको एनओएस यानी कि नम्स के जरिए रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। उसका पूरा नाम क्या है? सो पूरा नाम रहेगा उसका नंबर्स, और वो पूछा है यूनिट क्वांटिटी कोड, एक्चुअली यहाँ पे कोड उसको देना पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ पे बॉक्स, सॉरी बॉक्स नहीं, मुझे नंबर टाइप करना है, सॉरी नम्स है, तो अगर मैं नम्स लिखूंगा तो देखें यहाँ पे एनओएस आ गया, नंबर्स के लिए मुझे वो सिलेक्ट करना है। ऑलवेज रिमेंबर यूनिट ऑफ मेजरमेंट जब आप देते हैं बी स्पेसिफिक या डेसिबल में नहीं होगा। हाँ, अगर वो केजी में है या तो फिर लीटर में है तो वहां पे डेसिमल होने के चांसेस हैं, लेकिन जब नंबर्स की बात करते हैं तो वहां पे डेसिमल प्लेस नहीं हो सकता, इट विल बी ऑलवेज जीरो। मैं इसको सेव कर लेता हूँ एक्सेप्ट करके। तो जैसे जैसे ही मैंने सेव किया यू कैन सी नंबर्स वाला यूनिट यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे एक और चीज पूछ रहा है ऑल्टरनेट यूनिट। तो लेट मी डीएक्टिवेट दिस फंक्शन, क्योंकि अभी आपको ऑल्टरनेट यूनिट का समझ में नहीं आएगा, तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। आई विल कैसे बंद करूंगा, मैं F12 में जाऊंगा। F12 में यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्वेंटरी डिटेल्स में चौथा आइटम दिया है यूज ऑल्टरनेटिव यूनिट्स। मैं इसको अभी बंद कर रहा हूँ क्योंकि अभी आपका काम का नहीं है। हाँ, लेकिन वापस डीएक्टिवेट भी करूंगा तो वो बाद में करूंगा। तो अभी सोनी टीवी पे आ गया, ग्रुपिंग टेलीविजन सेट कैटेगरी 25 यूनिट्स, नाम्स आ गया। जीएसटी एप्लीकेबल है तो आप बोल सकते हैं हाँ बिल्कुल एप्लीकेबल है। सेट ऑल्टरनेटर अभी करने की जरूरत नहीं, इसको छोड़ दीजिए। टाइप्स ऑफ सप्लाई गुड्स ले लीजिए, रेट ऑफ ड्यूटी नहीं आएगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी की बात करें तो ड्यूटी भी जीरो। यहाँ पे वो पूछ रहे हैं ओपनिंग बैलेंस। अगर आपके पास सोनी टीवी का ओपनिंग बैलेंस है, जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर का क्लोजिंग था तो करंट ईयर का वो ओपनिंग बन जाएगा। तो ओपनिंग से फॉर एग्जांपल अगर है, फॉर एग्जांपल मेरे पास 100 सोनी टीवी के आइटम्स पड़े हैं, तो वो मॉनिटर कितने का है टेलीविजन सेट, एक टेलीविजन सेट आई कैन से 18,500 रेट का है, तो वो अपने आप कैलकुलेशन कर लेगा। लेकिन मैं पहले बता दूं ये कब करना है, जब आपका ओपनिंग होगा। तो मेरे एग्जांपल में ओपनिंग नहीं है तो मैं उसको सिंपली क्रिएट कर रहा हूँ अभी, उसके बाद इसको ऑल्ट्रेशन भी करूंगा। ओके वेट से, तो मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। सो मैंने सोनी टीवी को एक्सेप्ट कर लिया, मेरा सोनी टीवी का जो ग्रुप था, स्टॉक था, वो एक्चुअली क्रिएट हो गया। अब आपने देखा जैसे कि मैंने फर्स्ट आइटम क्रिएट कर ली, दैट इज सोनी टीवी विद द 25 इंच। अब सेकंड आइटम की बात करते हैं, और सेकंड आइटम है फिलिप्स टीवी। चलिए वो क्रिएट करते हैं। डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं रखना है मुझे, आपको याद होगा ग्रुप टेलीविजन सेट, और ये 29 इंच में जाएगा, नंबर्स। ओके 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 सेट। अब देखिए यहाँ पे मैंने दो स्टॉक आइटम सक्सेसफुली क्रिएट कर दिए।
तो अगर मुझे देखना है तो क्या मैं यहाँ से देखूंगा? यहाँ से नहीं दिखेगा, ये तो कंपनी ये तो क्रिएशन वाला स्क्रीन है, तो कहाँ से दिखेगा? तो उसको देखने के लिए दो अलग अलग तरीके अवेलेबल है। से फॉर एग्जाम्पल मुझे स्क्रीन पे दिख रहा है स्टॉक समरी, दिख रहा है सबको? आया ना? स्टॉक समरी दिख रहा है? यस सर। Yes, sir. ओके, तो स्टॉक समरी में भी जा सकता हूँ, लेकिन हाँ अभी हमने सिर्फ स्टॉक आइटम क्रिएट किया है, तो क्यों ना हम उसमें कुछ ओपनिंग डाल देते हैं या तो फिर कोई एंट्री डाल देते हैं परचेज की, जिससे आपको वो स्टॉक यूनिट दिखे, ठीक है ना? तो चलिए एक काम करता हूँ, ओपनिंग तो नहीं डालता हूँ, लेकिन वाउचर में जाके एक परचेज का एंट्री डाल देता हूँ हाइपोथेटिकल, ठीक है? तो चलिए F9 परचेज वाउचर में जाता हूँ, डेट में वही रखता हूँ। अब यहाँ पे देखिए अगेन मैंने जो उसका मोड है, लेआउट है, वो इनवॉइस मोड में रखा है। कैसे पता चला? क्योंकि डेबिट क्रेडिट नहीं आ रहा है। और कैसे चेंज कर सकते हैं? तो यहाँ पे Ctrl+H चेंज मोड दिया है, मैं चाहूँ तो उसको अकाउंटिंग इनवॉइस के तौर पे भी कर सकता हूँ। तो यहाँ अकाउंटिंग इनवॉइस में क्वांटिटी चलाऊँ, ठीक है? मुझे वाउचर करूँगा तो डेबिट एंड क्रेडिट आ जाएगा, तो मुझे डेबिट एंड क्रेडिट नहीं चाहिए क्योंकि मुझे क्वांटिटी देना है, तो एज ए आइटम इनवॉइस में जाना पड़ेगा। तो मैं आइटम इनवॉइस में जा रहा हूँ। मान लीजिए आपका इनवॉइस नंबर 001 है, जस्ट फॉर द सिंप्लिसिटी। पार्टी अकाउंट, चलिए एक पार्टी क्रिएट कर लेते हैं। अतुल इलेक्ट्रो कंपनी, ठीक है? मैं ये मेरा सप्लायर है तो ऑब्वियसली वो मेरा संडे क्रेडिटर्स होगा। मेंटेन बैलेंस बिल भी यस, डिफर क्रेडिट पीरियड मैं 20 दिन का दे रहा हूँ, लास्ट को यस कर देता हूँ। एड्रेस डालने की जरूरत नहीं है, ओके? मैं इसको Ctrl+A दे के सेव कर लेता हूँ। तो चलिए ये आ गया। उसके बाद वो पूछ रहा है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एक्टिवेटेड है फंक्शन, तो वो पूछ रहा है कि रिसिप्ट नोट नंबर कौन सा है, रिसिप्ट डॉक्यूमेंट नंबर कौन सा है, डिस्पैच टू कैसे किया था, ठीक है, डेस्टिनेशन क्या था, कैरियर एजेंट का नाम क्या है, बिल ऑफ लीडिंग क्या है। ये सारी चीज़ें अभी हमें कुछ नहीं करनी, इसको स्किप करते हैं। एंटर 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 एंटर। ओके, अब वो पूछ रहा है परचेज लेजर। तो परचेज लेजर मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे ये भी क्रिएट करना पड़ेगा। परचेज अकाउंट, सो ग्रुपिंग आएगा परचेज अकाउंट। मैं इसको भी फटाफट Ctrl+E देके सेव कर लेता हूँ, ठीक है? कर लिया। अब वो पूछा है स्टॉक आइटम, तो आपको याद होगा मैंने सोनी टीवी का स्टॉक क्रिएट किया था, तो जैसे ही मैंने सोनी टीवी सर्च किया, कीबोर्ड से टाइप किया था वो, चलिए सिलेक्ट कर लेते हैं। अब वो पूछ रहा है क्वांटिटी, तो मैं लिख लेता हूँ भाई 100 क्वांटिटी परचेज की है। प्राइस, सो मान लीजिए 18,500 का आपका प्राइस है, ठीक है? ये लीजिए। उसी में मैं फिलिप्स का भी एंटर डाल देता हूँ कि मैंने फिलिप्स भी टीवी उसी के साथ परचेज किया है। कितना? वो 200 ले लिया है। इसका प्राइस दे दीजिए 20,500। तो ये आ गया। अब मैं इस एंट्री को सेव कर देता हूँ, ठीक है? चलिए, प्रोवाइड जीएसटी डिटेल, आप अगर यस करोगे तो वो जीएसटी की सारी इंफॉर्मेशन पूछेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, अभी सिंप्लिसिटी के लिए इसको नो कर देता हूँ ताकि वो कुछ पूछे ना। यहाँ पे उसका बाय डिफॉल्ट नंबर 001 डाल देता हूँ, इसको सेव करते हैं। चलिए एंट्री सेव हो गया। अब वापस मैं बाहर आता हूँ गेटवे ऑफ टैली पे। गेटवे ऑफ टैली पे अब अगर मुझे देखना है कि स्टॉक है या नहीं, कितना है, तो मैं एक तरीका है कि मैं स्टॉक समरी में जा सकता हूँ। सो आई विल गो इन स्टॉक समरी। स्टॉक समरी में देखिए सबसे पहले आपको टेलीविजन सेट यानी कि ग्रुप दिखा रहा है। अगर आप इसके ऊपर एंटर करेंगे तो वो आपको फिलिप्स टीवी एंड सोनी टीवी जो आपका स्टॉक आइटम था वो दिखा रहा है। सर कहीं पे भी मुझे इसने स्टॉक कैटेगरी तो नहीं दिखाया, तो वो नहीं दिखाएगा बाय डिफॉल्ट, वो यहाँ से नहीं दिखाता है, उसको अलग तरीके से देखना पड़ता है। तो कहाँ से ढूंढना पड़ता है मैं वापस बताता हूँ। गेटवे ऑफ टैली पे जाके स्टॉक समरी में जाऊंगा तो मुझे टेलीविजन सेट दिखाएगा जो मेरा मेन ग्रुप है, उसमें मुझे स्टॉक आइटम दिखा रहा है, कैटेगरी नहीं दिखा रहा है। फिलिप्स टीवी पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो आप देख सकते हैं इनवर्ट दिखा रहा है क्योंकि 200 क्वांटिटी आपने परचेज की है, 41 लाख का कुछ बिल बना है और उतना ही क्लोजिंग है क्योंकि मैंने उसमें से कोई सेल नहीं किया। सोनी टीवी का भी 100 नम्स परचेज किया है, 18,500 का प्राइस था, सो वो हिसाब से 18,15,000 हो गया। तो अब मुझे अगर स्टॉक कैटेगरी देखना है तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ। हाँ, यहाँ पे भी एक ऑप्शन है जहाँ से देख सकते हैं। आपको जाना है यहाँ पे Alt+G में, तो जैसे Alt+G प्रेस करेंगे कुछ बड़ा सा मेन्यू ओपन होगा। आपका कर्सर यहाँ पे है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, सर्च कीजिए स्टॉक कैटेगरी। तो जैसे स्टॉक कैटेगरी सर्च करेंगे आपको स्टॉक कैटेगरी समरी मिल जाएगा। सो स्टॉक कैटेगरी समरी को एंटर कीजिए। उसमें आप अगर 25 इंच पे क्लिक करेंगे तो देखिए वो 25 इंच की कैटेगरी में, स्टॉक कैटेगरी में यहाँ पे आ गया। ये देखिए 25 इंच का कैटेगरी आया।
तो यहाँ से आपको पता चलता है कि 25 इंच का सोनी टीवी 100 नाम्स आपके पास है। तो इस तरह से आप स्टॉक कैटेगरी को सर्च कर सकते हैं। 29 इंच देखना है तो मेरे पास फिलिप्स टीवी पड़ा है, ठीक है। अगेन आपको 25 इंच वाला देखना है तो मैं अगेन ऑल्ट प्लस जी में जाऊंगा, उसमें क्या करूंगा, स्टॉक कैटेगरी, ऑलरेडी स्टॉक कैटेगरी में था, यानी कि समरी नहीं दिखाएगा क्योंकि वहीं पे हूँ। तो वापस एस्केप करता हूँ, ये रहा। सो 25 इंच में मेरे पास सोनी टीवी पड़ा है, 29 इंच में मेरे पास फिलिप्स टीवी पड़ा है। ये था एक तरीका टू सी द स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक ग्रुप एंड स्टॉक आइटम। सर, इज देयर एनी अदर वे टू सी दिस स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम? आई विल से यस। कौन सा तरीका है? तो मैं अब जाऊंगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में मैं जाऊंगा इन्वेंट्री बुक्स में। इन्वेंट्री बुक्स में देखिए आपको यहाँ पे स्टॉक ग्रुप भी मिल जाता है, स्टॉक कैटेगरी भी मिल जाता है, दिख रहा होगा आपको। तो अगर आप स्टॉक ग्रुप समरी पे क्लिक करोगे तो टेलीविजन सेट पे क्लिक कीजिए, आपको फिलिप्स और सोनी टीवी दिखेगा। अगर आप बैक चाहेंगे, एस्केप देंगे, स्टॉक कैटेगरी समरी पे क्लिक करेंगे तो अगेन आपको 25 इंच और 29 इंच का बाइफिकेशन मिल जाएगा। I hope so. This two different way how we can see the stock category is understood by you. Any question? No, sir. ओके, अब बारी आती है बाकी की एक्टिविटी कंप्लीट करने की। अब देखिए मैंने सबसे पहले आपको वाइजली ये क्यों ऐसा आपको अरेंज करके क्यों दिया, ताकि वो आप समझ में आपको आ सके। अगर मैं पहले सोनी स्टॉक आइटम क्रिएट करता, फिर कैटेगरी पे जाता और फिर ग्रुप पे जाता, तो थोड़ा समझने में दिक्कत होता है। इसीलिए मैंने उसको डिसेंडिंग फॉर्म में उसको अरेंज किया, जैसे टैली प्राइम भी आपको शो करता है। तो सबसे पहले आप ग्रुपिंग डिटरमाइन कर लीजिए, फिर उसका कैटेगरी आपको कैसे डिटरमाइन करना है, वेदर आपको कैटेगरी इंच के वाइज रखना है, ओके, ब्रांड के वाइज रखना है, या कोई और स्पेसिफिकेशन के हिसाब से कैटेगरीज करना है, तो वो आप देखिए। स्टॉक आइटम तो आपको पता ही है। उसके बाद देखिए और 3 या 4 हैं, तो मैं ऑब्वियसली नीचे म्यूजिक सिस्टम का ग्रुप है मैंने क्रिएट किया हुआ है। और स्टॉक कैटेगरी देखिए मैंने क्या उसको रखा है, मैंने उसको 3500 वोट, यानी कि उसका जो साउंड सिस्टम का जो आउटपुट है, मैंने उसको कैटेगरी बनाया। सो 3500 वोल्टेज का जो साउंड सिस्टम है वो एक कैटेगरी है, एक 5000 वोट का कैटेगरी, एक 7500 वोट का कैटेगरी, और आप देख सकते हैं नीचे एक साउंड बार का ग्रुप है जिसमें मैंने 2500 वोट का भी एक स्टॉक कैटेगरी रखा है। चलिए अब ये फटाफट इसको भी क्रिएट कर लेते हैं। सो मैं वापस गेटवे ऑफ टेली पे जाऊंगा। गेटवे ऑफ टेली पे जाने के बाद क्रिएट, उसमें स्टॉक ग्रुप आई थिंक सो मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर लिया था, तीनों के तीनों ग्रुप। तो मुझे अभी क्रिएट करना है स्टॉक कैटेगरी। तो क्रिएट स्टॉक कैटेगरी करते हैं। क्या है? 3500 वोट, 5000, 7500, 2500। ओके, तो चलिए ये एक आ गया। मैंने सारे स्टॉक कैटेगरी क्रिएट कर लिए। चलिए स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं। क्रिएट स्टॉक आइटम। तो थर्ड आइटम है सोनी टेप रिकॉर्डर। अब आपको याद होगा इसका पहले वो ग्रुप पूछ रहा है, तो सोनी टेप रिकॉर्डर कौन से ग्रुप में आएगा, कोई बताएगा प्लीज? आर यू देयर? हेलो, सोनी टेप रिकॉर्डर कौन से ग्रुप में आएगा? एम आई ऑडिबल? सोनी टेप रिकॉर्डर कौन से ग्रुप में आएगा? Sir, music system. म्यूजिक सिस्टम। सो आई विल सिलेक्ट म्यूजिक सिस्टम। उसके बाद वो कैटेगरी पूछ रहा है, तो उसको कौन सा कैटेगरी डालें? टैप रिकॉर्डर को। देख लेते हैं एग्जांपल में क्या दिया है। सो टैप रिकॉर्डर को 3500 वॉट। चलिए 3500 वॉट सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यूनिट ऑलरेडी आपने नाम क्रिएट करके रखा है, यहाँ पे मैं कंट्रोल ए प्रेस कर दूंगा
ताकि वो फास्ट फॉरवर्ड में सेव हो जाए। उसके बाद है सोनी 5.1 चैनल होम थिएटर। ओके, सो अगेन ये आपका ग्रुपिंग आएगा म्यूजिक सिस्टम। आई थिंक सो ये अब जाएगा 5000 वॉट में। नॉर्म्स मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, हाँ 5000 वॉट ही है। इसको कंट्रोल ए दे देता हूँ। उसके बाद है फिलिप्स। म्यूजिक सिस्टम में ही आएगा। आई थिंक सो ये अब जाने वाला है 7500 वॉट। यस, नॉर्म्स कंट्रोल ए। उसके बाद एक लास्ट वाला स्टॉक आइटम बचा, बूट कंपनी का स्मार्ट साउंड बार है। ओके, आपको याद होगा अब इसका ग्रुपिंग आएगा साउंड बार। इसको आई थिंक सो 2500 वॉट का कैटेगरी दिया था। नॉर्म्स कंट्रोल ए। देखिए सारी चीजें हो गई। अगेन अभी आप स्टॉक समरी पे जाएंगे। सो टेलीविजन सेट यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, फिलिप्स और वो। उसके बाद अगर डिस्प्ले रिपोर्ट में जाता हूँ, इन्वेंट्री में जाता हूँ, स्टॉक कैटेगरी में जाता हूँ, तो वो मुझे ये दिखा रहा है। अब आप बोलेंगे सर आपने जब गेटवे ऑफ टैली पे गए, जब स्टॉक समरी में गए, तो सिर्फ टेलीविजन साइट क्यों दिखा रहा है, बाकी की चीजें तो हमने क्रिएट की वो नहीं दिखा रहा है। एनी आंसर फॉर दिस, वो क्यों नहीं दिखा रहा है बाकी की चीजें? क्योंकि वो परचेज में नहीं लिए अभी तक। एग्जैक्टली, परचेज ही नहीं किया, ऐसा तो कहाँ से दिखाएगा? ये तो टेलीविजन सेट आपने परचेज की एंट्री डाली थी इसलिए दिखा रहा है। तो अब मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं एक ऑल्ट्रेशन करता हूँ। सो ऑल्ट्रेशन में जाके स्टॉक आइटम को थोड़ा ऑल्टर करते हैं। तो चलिए पहले बूट स्मार्ट बार का एक ओपनिंग डाल देते हैं। मान लीजिए कि क्लोजिंग था लास्ट ईयर का, तो यहाँ पे मैं 100 आइटम दे देता हूँ। कितने का है? 4500 का साउंड बार है, ठीक है, इसको सेव कर लीजिए। चलिए उसका फिलिप्स का कितना आपको क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है? चलिए ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको ऑल्ट्रेशन भी समझ में आ जाए अगर करना है तो। सो इसका 500 सेट पड़ा है मेरे पास। ए 5.1 चैनल का है तो कितने में जाएगा सर? 12,500 का पर पीस है, तो ये भी आ गया। उसके बाद सॉरी डबल क्लिक हो गया। इसके बाद सोनी का चैनल, ओके, तो इसका क्वांटिटी ले लेते हैं। सर ये 50 ही पड़ा है, कितने का है? तो सर ये 15,500 का है। चलिए ये भी सेव कर दिया। सोनी का टैप रिकॉर्डर पड़ा है, तो चलिए इसका भी थोड़ा क्वांटिटी डाल देते हैं। 250 कितने का है? ये ज़्यादा महंगा नहीं है सर, ये 1550 का है, ठीक है, ये मैंने डाल दिया। अब अगर मैं गेटवे ऑफ टैली पे जाके स्टॉक समरी अगर देखूंगा, तो मुझे बाकी के ग्रुपिंग सारे देखने को मिलेंगे। अगर मुझे यहाँ पे मैं एक शॉर्टकट की यूज कर रहा हूँ, Alt प्लस F1। अगर आपको लिखना है तो प्लीज लिखिएगा, क्योंकि जब भी शॉर्टकट की बोलता हूँ तो लिखना जरूरी है। यहाँ पे स्क्रीन पे मुझे डिटेल में देखना है कि जैसे कि यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम 800 दिखा रहा है, साउंड बार 100 दिखा रहा है, टेलीविजन सेट 300 दिखा रहा है, लेकिन उसमें भी सब ग्रुप है। तो कैसे मैं देख सकता हूँ डिटेल व्यू के लिए? सो ऑल्ट प्लस अगर F1 करता हूँ मैं, तो मुझे डिटेल व्यू दिखता है। तो म्यूजिक सिस्टम में मेरा फिलिप्स है, सोनी है, टैप रिकॉर्डर है, उनके क्वांटिटी का टोटल करके 800 हो रहा है। साउंड बार में तो बोट का ही साउंड बार है 100, और टीवी में फिलिप्स है, सोनी है, दोनों का टोटल मिला के 300 हो रहा है। तो ये शॉर्टकट की है ऑल्ट प्लस F1 आपका डिटेल व्यू करने के लिए। अगेन अनडिटेल करने के लिए अगेन वही शॉर्टकट की है, डिटेल में देखने के लिए और उसको वापस क्लोज करने के लिए। तो ऑल्ट प्लस F1, ऑल्ट प्लस F1। ओके, मैं वापस गेटवे ऑफ टैली पे आ जाता हूँ। आई होप सो ये एक्टिविटी जो था स्टॉक आइटम वाला वो आपको समझ में आ गया होगा। एनी क्वेरी? नो सर। No. Okay. नो सर। Okay. Let's go for understanding now the thing which is there for activity number 5. ये थोड़ा लेंदी है और थोड़ा आपको माइंड भी यूज करना पड़ेगा। You are supposed सर to pass the, हाँ बोलिए। सर अगर एक डैश हो नीचे तो ऑल्ट नो सर, एंड इफ डबल डैश इज देयर सो कंट्रोल। कंट्रोल, एग्जैक्टली, एक डैश है तो ऑल्ट और डबल डैश है तो कंट्रोल। ओके सर। ओके, चलिए एक्टिविटी नंबर 5 देखते हैं क्या है। यू आर सपोज टू पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मेसर्स विकास इलेक्ट्रिकल ट्रेडिंग कंपनी फॉर द ईयर
मैं एक काम कर देता हूँ, अभी फिर से नई कंपनी नहीं क्रिएट करना। इस कंपनी का जो अभी क्रिएट किया था इसका नाम था VS इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एसोसिएट, यही नाम नीचे लिख लेता हूँ ताकि उसी कंपनी में हम अपना ये जो एंट्री पास करने का टास्क है वो हम कर सकें। तो मैं यहाँ पे नाम चेंज कर रहा हूँ। So you are supposed to pass the necessary journal entries in the books of Messrs. VS Electronic Associate for the year starting from 1st 2020. Maintain the books of account with Tally Prime सॉफ्टवेयर विद द इन्वेंट्री फॉर अकाउंटिंग पर्पस। तो इससे पहले हमने इन्वेंट्री के साथ एंट्रीज नहीं देखी थी, अब इसमें आपको इन्वेंट्री के साथ वाली एंट्री भी दिखेगी, विदाउट इन्वेंट्री वाली भी एंट्री देखने को मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 अप्रैल को सबसे पहले एक काम कर लेता हूँ, जो एंट्री मैंने हाइपोथेटिकल यहाँ पे डाली थी कोई बात नहीं, वो पूरा स्टॉक यूनिट ही अलग है तो मैं रहने देता हूँ, कोई डिलीट नहीं करता हूँ, चलेगा। 1 अप्रैल 2020 को कह रहे हैं कि मिस्टर हेमंत पटेल has started the business with ₹10 लाख। चलिए जनरल एंट्री बताइए क्या होगा। What will be the journal entry? Cash to capital. कैश टू कैपिटल। ओके चलिए, तो मैं एक एंट्री करने की कोशिश करता हूँ आपके सामने। आई विल गो इन द वाउचर, डेट तो पहले ही रहना है मुझे। सो रिसिप्ट में डालेंगे, रिसिप्ट वाउचर में जाएगा ना, हाँ या ना? हेलो, Yes, sir. ओके। रिसिप्ट वाउचर में पहली डेट में डाल देता हूँ कैपिटल अकाउंट। तो मैं पहले क्रिएट कर लेता हूँ, इसका कौन है, हेमंत पटेल। हेमंत पटेल कैपिटल अकाउंट। तो ग्रुपिंग आपको भी पता है, कैपिटल अकाउंट आएगा। मैं इसको फटाफट सेव करने की कोशिश करता हूँ विद कंट्रोल A। ओके, सो आई थिंक से कितना अमाउंट था, 10 लाख। चलिए मैं इसको सेव कर लेता हूँ। सेकंड एंट्री है, मिस्टर हेमंत पटेल ब्रॉट ऑफिस कंप्यूटर फॉर ₹25,000 विद द इनवॉइस नंबर सो एंड सो ऑन द क्रेडिट फ्रॉम HK टेक्नो प्राइवेट लिमिटेड। एंट्री बताइए जनरल एंट्री, और कौन से वाउचर में जाएगा वो भी बताइए। Sir, computer to HK Limited. वन बाय वन प्लीज रेज योर हैंड। Yes, please. Those who want to speak, they can raise your hand. Okay, Rakshesh जी बोलिए। Sir, computer account debited to HK Private Limited account. ओके, कंप्यूटर अकाउंट, ठीक है चलेगा। और कौन से वाउचर में जाएगा दक्षेश एंट्री? Sir, other vouchers. अदर वाउचर्स में एंट्री Journal होगा। voucher. मुझे एक आंसर बताइए, कौन से वाउचर में डालूं, F10 और F7? F7. F7 में जाएगा, राइट आंसर। F7 में जाएगा ये एंट्री। चलिए Sir, so in other vouchers, what will be there? जस्ट वेट अ सेकंड। कितने का कंप्यूटर है, ऑफिस कंप्यूटर 25,000। इससे परचेस किया है HK टेक्नो प्राइवेट लिमिटेड। इसका ग्रुपिंग क्या आएगा? Sundry creditor. राइट आंसर, सन्ड्री क्रेडिटर्स। अब यहाँ पे डिफॉल्ट पीरियड को डाल नहीं रहा हूँ, ठीक है, इंफॉर्मेशन है नहीं, जो है वैसे ही डाल रहा हूँ। अब वो आपको रेफरेंस नंबर पूछ रहा है, इनवॉइस नंबर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इनवॉइस नंबर दिया है, हाँ दिया है। Always try to write down the narration in such a way in the future no one is having any question, any doubt about your entry। मैं नरेशन पूरा लिखता हूँ, उसके पीछे रीजन यही है कि अगर आज आप अच्छे अकाउंटेंट बनेंगे तो नरेशन पूरा लिखेंगे,
बहुत लोग क्या करते हैं, नरेशन बहुत शॉर्ट में लिखते हैं, समझ में नहीं आता है, लेकिन वो चीजें आपको फ्यूचर में दिक्कत देगी। क्योंकि अगर मेरे जैसा कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट कर रहे आएगा, आपका नरेशन प्रॉपर नहीं होगा, तो वो एंट्री टू एंट्री आपको क्वेश्चन पूछेगा कि यहाँ पे ये बिल मिसिंग है, बिल नंबर डाला नहीं है, डेट डाली नहीं है, नरेशन प्रॉपर नहीं है, तो ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हम लिमिटेशन है, डेट चेंज नहीं कर देता इसलिए, अदरवाइज तो हम डेट चेंज करके डाल सकते हैं। यहाँ पे सेकंड अप्रैल है, देखिए एक ट्रांजेक्शन में आपको सेकंड अप्रैल में भी आप इंसर्ट करके दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। मैं यहाँ से F2 के जरिए डेट चेंज कर रहा हूँ, सो सेकंड अप्रैल ले रहा हूँ, इसको कंट्रोल A से सेव कर रहा हूँ, ये एंट्री मेरा सेकंड अप्रैल में सेव हो गया। चलिए आगे बढ़ते फटाफट। यहाँ पे थर्ड एंट्री है, an invoice number CK 2021-201 of rupees 50,000 for an office furniture and the renovation work has been received, okay, from CK Furniture Mart. Mr. Hemant Patel paid 25,000 for office furniture and renovation work and balance amount paid with the check number so and so so and so so and so। इस एंट्री को 2 बार पढ़िए और मुझे बताइए क्या करना है, कैसे करेंगे। Yes, please. Sir, we are buying the furniture. Oh, one by one. Please. I'm sorry. रुद्रम बोल। बोलिए कौन बोल रहा है? रिजल्ट दक्षेश बोलिए। Yes, sir. We are buying the फर्नीचर। Yes, sir. Sir, here we are buying the furniture. So half payment we are doing through cash, ओके राइट and 25,000 we are giving by the check. राइट ओके राइट आंसर इज राइट। नाउ व्हाट विल बी द एंट्री दक्षेश? बिफोर यू जस्ट लेट मी आस्क, आई थिंक सो आरवी शाह, दिस इज आरवी शाह, यू आर आल्सो स्पीकिंग समथिंग, प्लीज बेटा Yes, बोलिए। sir. हां बोलिए। सर सेम ही है। सेम अब है। एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश टू बैंक। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश 25,000 टू चेक 25,000। ओके लेट मी जस्ट, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन पूछूंगा, आंसर दीजिएगा, ठीक है? वापस पूछूंगा। यस आपने यहाँ पे एंट्री आइडेंटिफाई किया है, मैं उसको थोड़ा लिख के बताता हूँ ताकि आपको समझ में आए। चलिए यहाँ पे देखिए 50,000 का है, ऑफिस फर्नीचर और रिनोवेशन वर्क है। मैं नीचे एक एंट्री लिखने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। चलिए आपने जो एंट्री बोला वो आपने बोला ऑफिस फर्नीचर, राइट? डेबिट रुपीज 25,000, सही बोला ना? हाँ यस। सर सॉरी, क्वेश्चन पढ़ा तो 25,000 तो हम लोग 2 महीने बाद पे कर रहे हैं ना? 2 महीने बाद, लेट मी चेक इट, मैंने भेज दिया। वापस आ जाता ऊपर, ये रहा। 2 महीने बाद इन द सेंस उसका पेमेंट 2 महीने के बाद जा रहा है, और कुछ नहीं। चेक तो इशू हो गया ना? चेक इश्यू होगा, नो डाउट, दैट्स ओके। हाँ तो सर तो कैश और बैंक पेमेंट 5th को जा रहा है, 5th जून को। ओके सर। अभी क्या एंट्री होगा? आप कुछ चेंज करना चाहते हैं तो चेंज करके बताइए एंट्री। नहीं सर, तो प्रॉपर ही है, अगर चेक निकाल दिया है तो बराबर ही है। तो क्या एंट्री डालूं मैं? अभी क्या एंट्री लिखूं बताइए? जितना मेरे को पता है उसके हिसाब से तो वही होगा, बाकी पता नहीं, सीख अरे लेंगे। कोई बात नहीं, डरो मत। आप जो बोल रहे हैं मुझे, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मुझे लिखना Okay. पड़ेगा, और कुछ नहीं। आप बताइए मुझे आपकी एंट्री। ठीक है, फर्नीचर टू कैश टू सीके फर्नीचर और
जब 5/6/2020 होगा तब CK फर्नीचर टू बैंक हो जाएगा। अच्छा, फर्नीचर टू कैश कितना, अमाउंट कितना लिखो, 50,000? हाँ, फर्नीचर 50,000, हाँ, कैश 25,000, ओके, जस्ट होल्ड CK ऑन, होल्ड ऑन, फर्नीचर होल्ड में। ऑन, होल्ड ऑन, मतलब मुझे हाँ लिखा सर, तो। सॉरी। आप कुछ इस तरह से एंट्री बता रहे हैं, ऐसे इस तरह हाँ, से? टू CK फर्नीचर में 25,000। ओके, चलिए, कौन बताएगा ये एंट्री सही है जो इन्होंने आइडेंटिफाई किया वो? मैं वापिस, आप चाहे तो एक दूर रुकिए, मैं और एक चीज कर लेता हूँ, रुक जाओ। सी, जब अकाउंटिंग करते हो ना, तो आप जो एंट्री कर रहे हो ना, उसको बहुत ही अच्छी तरह से 2 या 3 बार चेक कीजिए कि आप एंट्री क्या पास कर रहे हैं। क्योंकि अभी हमें लगता है कि हम तो बहुत ही अच्छी तरह से एंट्री पास कर रहे हैं, लेकिन कहीं पे कुछ गलत है या नहीं, चलिए देखते दिखाता हूँ आपको वापस। होल्ड ऑन। चलिए एक ब्लैंक पेज ले लेता हूँ। ओके, आपने जो एंट्री वहां पे बोला था, मैं यहाँ पे